कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल सम्मानित अतिथियों के रूप में समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान के चुनाव प्रबंध निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मतदाताओं को समर्पित राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की विषय वस्तु पिछले वर्ष की तरह वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम हैं। इस सब का विवरण देने के लिए मैं हूं शोएब खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका। Namaskar, good morning and welcome to this very special broadcast. The Election Commission of India is celebrating the 14th National Voters' Day today at the Manekshaw Centre at Delhi, Cantt. The Hon'ble President of India, Srimati Droupadi Murmu, will be the chief guest on the occasion. And the Union Minister of State for Law and Justice, Independent Charge, Shri Arjun Ram Meghwal, will grace the occasion as guest of honour. The event will be attended by heads of representatives of the election management bodies from Maldives, the Philippines, Russia, Sri Lanka and Uzbekistan. Dedicated to the voters, the National Voters' Day 2024's theme is "Nothing like voting, I vote for sure," is a continuation from last year's theme. The Honourable President will present the Best Electoral Practices Awards for the year 2023. And these awards will be presented to the state and district level officers for their outstanding performance in the conduct of elections during the 2023 in different spheres such as information technology initiatives, security management, election management, accessible election, electoral role and contribution in the field of voters awareness and outreach. Awards will also be given to important stakeholders including government departments and media organizations for their valuable contribution towards voter awareness. The first copy of the ECI publication, ECI Initiatives for General Elections 2024, will be presented to the Honourable President of India by Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar. The book provides a comprehensive overview of the initiatives undertaken by each department of the ECI to ensure free, fair, inclusive, accessible and participatory conduct of elections. And listeners, we are all aware that every Indian citizen of the age 18 years and above is indeed enjoys the right to vote. It is one of the most important rights of Indian citizens. It allows them to choose a person or a party to work for the betterment of the society, the local area, that is the constituency, whether it is the municipal assembly or the Lok Sabha. The Representation of People's Act 1951 is an act of the Indian Parliament that provides the conduct of election to both houses of Parliament and to the house or houses of the legislature of each state, the qualifications and disqualifications for membership of those houses, the corrupt practices and other things. It was introduced, that is, the Representation of People Act was introduced in Parliament by the then Law Minister Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar. The Act was enacted by the Provisional Parliament under Article 327 of the Indian Constitution before the first general elections in 1952. 25th January carries significance as India observes the National Voters' Day, coinciding fittingly with the world's largest democracy's commitment to free and fair elections since 1950. Annually, this commemoration underscores each citizen's duty in shaping the nation's destiny. भारत का निर्वाचन आयोग आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है, जिसमें भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और इस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुरस्कार प्रदान करेंगी। निर्वाचन आयोग राष्ट्र सेवा के 75वें वर्ष का उत्सव भी मना रहा है। आयोजन के दौरान माननीय राष्ट्रपति 2023 के लिए चुनाव संबंधी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पुरस्कार प्रदान करेंगी।
पुरस्कार राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को 2023 के दौरान चुनावों के संचालन में आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सुलभ चुनाव, मतदाता सूची और मतदाता जागरूकता और पहुंच के क्षेत्र में उनके योगदान और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाएंगे। मतदाताओं की जागरूकता में बहुमूल्य योगदान के लिए सरकारी विभागों, मीडिया संगठनों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। भारत के चुनाव आयोग की प्रकाशन की पहली प्रति आम चुनाव 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहल मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार द्वारा माननीय राष्ट्रपति को भेंट की जाएगी। ये पुस्तक चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी, सुलभ और भागीदारीपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रत्येक प्रभाग द्वारा की गई पहलों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री राजकुमार हिरानी के सहयोग से चुनाव आयोग द्वारा निर्मित एक लघु मतदाता जागरूकता फिल्म माई वोट माई ड्यूटी भी यहां प्रदर्शित की जाएगी। लघु फिल्म में कई मशहूर हस्तियों द्वारा लोकतंत्र की भावना के संदेशों को और एक वोट की ताकत के साथ इसमें दिखाया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग आज राष्ट्र के लिए अपनी सेवा का 75वां वर्ष भी मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर और 2024 के संसदीय चुनावों के मद्देनजर समावेशी चुनाव विषय पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा, जो माननीय राष्ट्रपति जारी करेंगे। इस अवसर पर आगामी संसदीय चुनाव 2024 के लिए मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए एक अभिनव मल्टीमीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा। भारतीय चुनावों की भव्यता, चुनाव सुधार, तकनीकी प्रगति और चुनाव प्रबंधन नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी यहां आयोजित की जाएगी। भारत के निर्वाचन आयोग की आपको बता दें 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस मनाने के लिए 2011 से पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्सव का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच चुनावी जागरूकता पैदा करना है और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश के मतदाताओं को समर्पित राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उपयोग मतदाताओं, विशेषकर नए पात्र युवा मतदाताओं के नामांकन के लिए भी किया जाता है। देश भर में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में नए मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र भी सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्रीय, राज्य, जिला निर्वाचन क्षेत्र और मतदाता केंद्र स्तर पर मनाया जाता है, जो इसे देश के सबसे बड़े समारोह के रूप में माना जाता है। इस समारोह में केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम में मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्घाटन करेंगी और इसमें शिरकत करेंगी। The National Voters' Day also celebrates democratic values by encouraging voter participation. National Voters' Day upholds the democratic values of India, emphasizing the power of every individual's vote in shaping the nation's governance. The voters will take a pledge today. The pledge reads, and I quote, "We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold democratic traditions of our country and the dignity of free, fair, and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language, or any inducements." The objectives of the National Voters' Day are enhancing voter awareness and dispelling doubts about the electoral process, voter registration procedures, and the significance of informed voting. It also promotes inclusive participation. The day emphasizes the importance of inclusivity, encouraging participation from all eligible voters regardless of caste, gender, or socio-economic background.
Since 2011, National Voters' Day has been celebrated on January 25 every year, all across the country to mark the foundation day of the Election Commission of India, that is the 25th of January 1950. The main purpose of the National Voters' Celebration is to create electoral awareness among citizens and encourage them to participate in the electoral process. Dedicated to the voters of the country, the National Voter Day is also used to facilitate enrollment of voters, especially the newly eligible young voters. New voters were felicitated and handed over their electoral photo identity cards every year on the 25th of January in the National Voters Day function. National Voters Day is celebrated at the national, state, district, constituency and polling booth levels, which makes it one of the largest celebrations in the country. And the 14th National Voters Day will be celebrated today in a special function at the Manekshaw Center at Delhi, Cantt, and it will be graced by the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu. The Union Minister of State for Law and Justice, Independent Charge, Shri Arjunram Meghwal, will grace the function as the guest of honor. The event will be attended by heads and representatives from the election management bodies from neighboring and other countries. And the theme of the National Voters' Day 2024 is Nothing Like Voting, I Vote for Sure. आपको बता दें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश है जो हम आपको सुनवा रहे हैं। देश के सभी मतदाताओं को 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महान अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले, और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का अवसर है, क्योंकि युवा ही हमारे इस महान लोकतंत्र के मुख्य नायक हैं। और इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो और भी अधिक खास है, क्योंकि इस वर्ष लगभग 60 से अधिक लोकतांत्रिक देश अपने अपनी देश की सरकारों को चुनने के लिए चुनावों में भाग लेंगे, परंतु सबकी नजरें भारत पर रहेंगी, क्योंकि इस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा के साथ साथ लगभग 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। जैसा आप जानते हैं, वर्ष 2023 के दौरान हमने 9 राज्यों में चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन चुनावों में लगभग 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने निष्पक्ष परिवेश में आनंद और उल्लास से वोट के रूप में अपने बहुमूल्य लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, हिंसा की भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पुनर्मतदान भी लगभग ना के बराबर रहा। बस्तर में ऐसे 126 गांव थे जिनमें आजाद भारत में पहली बार पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए। वोटर्स बिना भय और चिंता के वोट डालने आए। महिला मतदाताओं ने भी पूरे जोश में उत्साह के साथ। ये था मुख्य चुनाव आयुक्त का संदेश। और अब आपको सीधे मनेक्षाव सेंटर लिए चलते हैं, जहां पर माननीय राष्ट्रपति पधार चुकी हैं।
Ladies and gentlemen, please be seated. And a very warm and a hearty welcome to all present in this August gathering and all those who are watching us on social media and other platforms, welcoming all of you on the 14th National Voters' Day celebrations. And ladies and gentlemen, Envy Day is an affirmation. It is a celebration of right of every citizen to select his government. और हर साल वर्ष 2011 से इस दिन को, इस तिथि को 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते आए हैं, जिस दिन वर्ष 1950 में एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने हेतु। और इस प्रकार ये तिथि हम सभी के संवैधानिक अधिकारों के तहत हर एक नागरिक को अधिकार देती है कि अपना कीमती वोट डालकर अपनी देश की नियति को आकार देने में अपनी जिम्मेवारी को वह निभाए। And this year, ladies and gentlemen, this date becomes all the more significant, for the Election Commission of India is entering its 75th year of service to the nation. तो राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप सभी का स्वागत करने के लिए कमीशन की तरफ से मैं आमंत्रित करती हूं माननीय चुनाव आयुक्त आदरणीय श्री अरुण गोयल जी को उनके स्वागत संबोधन के लिए। Honorable President Shrimati Droupadi Murmu ji, Honorable Union Minister of Law and Justice Shri Arjun Ram ji Meghwal, Honorable CC Shri Rajiv Kumar, Honorable EC Dr. Anu Pandey, former CECs, ladies and gentlemen. On behalf of the Commission, it's my proud privilege to extend you all a hearty welcome to the 14th National Voters' Day. I extend a very warm welcome to Honorable President of India, Shrimati Droupadi Murmu. Her esteemed presence as the chief guest on this special occasion is a source of inspiration to us for continued fulfillment of our constitutional mandate for free and fair elections. I extend a warm welcome to Honorable Union Minister Shri Arjun Ram ji Meghwal. Ministry of Law has always been fully supportive of initiatives of the Commission for strengthening the electoral process. I welcome the heads of political parties and their representatives who are important stakeholders in our democratic setup. The Commission has always considered the political parties and their willing adherence to the norms and the standards set forth under the electoral system as a big source of strength. I welcome visiting dignitaries from different election management bodies and celebrities associated with voter awareness. I extend a warm welcome to guests from media. They connect us with the voters in every nook and corner of the country. Your Excellency, while we are the world's largest modern democracy, historically we are the oldest. In the Rig Veda and the Atharva Veda, dating 6000 BC to 1100 BCE, the term Sabha, Assembly of Elders, Samiti, Assembly of Common Folk, and Sansad, Parliament, each a representative body, find frequent mention. Rig Veda Sukta says, come together, speak together, together let the thoughts agree. Common to all is a solemn utterance, common the assembly, common the thought along the perception. Since 1950, the role of our predecessors in demystifying the electoral steps and creating simple, administratively manageable, and publicly verifiable
processes is a stuff that legends are made of. The Election Commission of India has kept pace with the Indian polity and the times to weed out electoral malpractices and systematically usher in technology to bring the voter participation ever closer to the citizens. Sustaining the persuasive and resisting the coercive has been a hallmark of ECI culture and its success mantra. Recently, we have introduced the concept of most convenient place as polling station, particularly in urban areas, which should lead to still greater participation, especially of youth in our democracy. In the coming general elections, ECI team comprising of more than 1 crore workers is committed to give festive voting experience to more than 96 crore voters at more than 10 lakh polling stations in a free and fair manner and create another world record. It is this credibility of the ECI which made India witness peaceful transition of power through 17 national elections and over 400 state elections. I take this opportunity to request all our voters that they must come out to exercise their franchise in the coming 18th Lok Sabha elections and play an active role in the world's most robust democracy. Jai Hind. That was Thank you very Election much, sir, for your very Commissioner informative Shri Arun and Goyal, insightful welcome who remarks and motivating everyone delivered to the vote. welcome address. और देवी सज्जनों, हर The साल Honorable निर्वाचन President आयोग of India, अपने Srimati newly Droupadi registered Murmu, will voters now को present उनका electoral epic photo electoral identity photo cards identity card, to the newly मतदाता पहचान registered young पत्र voters, प्रदान and कर what a proud उन्हें moment उनके it is वोटिंग के अधिकार से indeed परिचय for करवाता है। these newly और आज हमारे साथ देश भर के newly registered voters of the country, because they will be playing a role in the upcoming elections this year, and it is indeed a proud moment for all these newly registered voters. आप उन्हें उनका एपिक प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करें। और देवी सज्जनों, आप सभी की प्रोत्साहन भरी तालियों के बीच इन यंग वोटर्स को मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ हैं वंशिका रोहिला। वंशिका रोहिला पहली बार वोट करेंगी, उन्हें उनका एपिक यहां पर प्रदान किया जा रहा है। और अब मंच पर अनिकेत कोहली, एक बार फिर से युवा वोटर यहां पर। युवा मतलब जुनून है, युवा मतलब सपने, और युवा मतलब संकल्प। और अब हमारे साथ रिदम और हमारे राष्ट्रगान में भी है कि भारत भाग्य विधाता। तो अपना वोट डालकर ये देश की नियति को आकार देने में दिव्यांश जोशी आप मंच पर। और अब तालियों के साथ मंच पर वत्सल बाली। इन सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा इन्हें इनका एपिक दिया जा रहा है और वोटिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और अब देवी सज्जनों, इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय निर्वाचन आयोग श्री अनूप चंद्र पांडे जी के विचारों को आमंत्रित करते हैं और मैं उनसे निवेदन करती हूं इस सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। Honorable Rashtrapati Srimati Droupadi Murmu ji, Honorable Law Minister Shri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable CEC Shri Rajiv Kumar ji, Honorable EC Shri Arun Goyal ji, leaders of all political parties, former CECs, ECI colleagues, ladies and gentlemen. Today, in this 74th
year of our democracy, we are celebrating our National Voters' Day in over 10 lakh polling stations across the length and breadth of India. This is the largest celebration of democracy in the world. The main objective of this exercise is to encourage, facilitate, and maximize the enrollment of our voters, especially for the new and future voters. Over the years, we have covered a lot of ground, starting from 17 crore voters in 1952. Today we have 96 crore voters in our electoral rolls, which includes 47 crore women voters. The voting percentage has increased from 45% in the first general elections to 67% in the last general elections. Our electoral journey carries a special significance as we celebrate a long journey of Indian elections that has witnessed 17 general elections to the Lok Sabha, about 400 general elections to the state assemblies, 16 elections to the office of Honorable President of India and Vice President of India, besides elections to Rajya Sabha and state legislative councils. This journey has been witness to the emergence, evolution, consolidation of a robust, vibrant, inclusive and participative electoral democracy in India, where the Election Commission has played a pivotal role as a constitutional entity. Universal adult suffrage came as a gift to the people from the founding fathers of the nation. The decision of the Constituent Assembly to give every Indian the right to vote under a system of universal and direct suffrage was an act of abundant faith in the common man and the ultimate success of the democratic rule. Our focus is to reach out to every voter, persons with deformities, senior citizens, women, handicapped, transgenders, and all vulnerable and marginalized segments of the population. We have provided 4 qualifying dates every year for electoral enrollment to increase the number of youth voters. In fact, the facility is provided for advance submission of voter registration form after 17-year itself, with automatic registration on attainment of 18 years of age. Special women-specific initiatives have been launched to reduce the gender gap. Polling booths specifically managed exclusively by women and PWDs are set up to encourage inclusion. The Commission is focusing on PVTGs, the particularly vulnerable tribal groups, to increase our outreach in tribal areas. Since last 3 to 4 years, postal voting has been introduced for 80+ senior citizens and PWDs to enable them to vote from home in case they are unable to come to the polling stations. Vulnerability mapping exercises during elections have been intensified to enable vulnerable and marginalized sections to vote. The Commission has introduced a number of sweep initiatives for enrollment of transgenders. Special accessibility measures on all polling booths are undertaken to facilitate the PWD voters. All the COs have been directed to identify pockets of low voter turnout and to intensify sweep initiatives in those pockets. User-friendly apps have been prepared for facilitating online registration of voters. Despite all these initiatives, still there are more than 30 crore voters who do not vote. Urban apathy, youth apathy, and migrant workers are the major challenges before the Commission as far as increasing the voter turnout is concerned.
Targeted strategies are being carried out to address all these three segments. The Commission is consolidating and building upon these initiatives to enhance the participation of all segments of population in the election process to ensure informed, inclusive, accessible, and participative elections. Thank you. मुख्य चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे Thank you very आम much, चुनाव sir, for 2024 highlighting the की various तैयारियों के initiatives बारे which में the जानकारी Election दे रहे Commission थे। has been taking. And ladies and gentlemen, as you know, we are approaching the Lok Sabha 2024 elections shortly. And towards that, for these elections to be free, fair, accessible, more participative, for the smooth conduction of these elections, the Election Commission of India is going to be taking a number of new initiatives. These initiatives we have compiled in a book entitled Initiatives of Election Commission of India for Parliamentary Elections 2024. मैं माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी से निवेदन करती हूं इस पुस्तक की पहली प्रति आप माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट करें। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पहली प्रति आम चुनाव देवी सज्जनों, ये पुस्तक 2024 के चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी, सुलभ और भागीदारीपूर्ण तरीके से आयोजित किए जाने की तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रत्येक Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar, is presenting the first copy of the book entitled ECI's Initiatives for General Elections to Lok Sabha 2024. आपको बता दें ये पुस्तक चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी, सुलभ और भागीदारपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रत्येक प्रभाग द्वारा की गई पहलों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। और देवी सज्जनों, हर साल एनवीडी पर हमारी ये परंपरा रही है कि राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों और इसके साथ साथ अन्य मुख्य हितधारक जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया पर्सनल्स, उन्हें सम्मानित किया जाता है उनकी सेवा, उनके सुचारू रूप से इलेक्शंस करवाने की उनकी प्रतिबद्धता और साथ साथ मतदाताओं की जागरूकता के प्रति लिए गए उनके अथक प्रयासों के लिए सम्मानित किया जाता है। उन्हें बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड्स प्रदान कर, तो इस परंपरा को जारी रखते हुए मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि आप वर्ष 2023 के विजेताओं को सम्मानित करें। तो देवी सज्जनों, शुरुआत करते हैं जनरल अवार्ड से। चुनाव प्रबंधन के लिए सामान्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है श्री विनीत नंदनवार को, आईएएस कलेक्टर एवं डीईओ, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। आपको छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदान बढ़ाने के लिए मतदाता सूची में 22,119 नए मतदाता जोड़ने के लिए अथवा स्वीप कार्यक्रम के तहत लोन देओ घर घर पहुंच अभियान के लिए सम्मानित किया जाता है। We now have the General Award for the Electoral Roll Management being awarded to Srimati Divya Prabhu GRJ, IS, DEO, Chitradurga, Karnataka. Awarded for increasing the voter turnout from 80.68% to 81.18% in the PWD voters from 14,092 to 23,422 with 100% poll achievement. और अब मतदाताओं की शिक्षा और चुनावी भागीदारी के लिए सामान्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है डॉक्टर विपिन ईतनकर को, आईएएस डीईओ, नागपुर, महाराष्ट्र। आपने मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी को बढ़ाने के लिए मिशन युवा EN 2023-24 को लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप लिंग अनुपात 964 से बढ़कर 978 हो गया। और अब आईटी पहल के लिए सामान्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है श्री अंशदीप को, आईएएस कलेक्टर और डीईओ, श्री गंगानगर, राजस्थान। आपने चुनाव अधिकारियों से संबंधित सभी पहलुओं के लिए वन स्टॉप ऐप इलेक्शन बडी ऐप को डिजाइन किया, जिससे आप मैनुअल प्रोसेसिंग के कारण होने वाली देरी को कम कर सके। We now have the General Award for Accessible Elections being awarded to Shri Saju Wahid A, IAS, DEO, South Tripura, Tripura. Awarded for ensuring assured minimum facilities at all polling stations and for enhanced efforts towards the conduct of inclusive and accessible elections. We now have the General Award for the Security Management being awarded to Dr. Ramesh Chand Yadav, IPS, SP Dhalai, Tripura. Awarded for achieving zero poll-related violence and reducing the average response time of addressing any complaint from 90 minutes to 22 minutes.
We now have the General Award for Security Management being awarded to Shri Vineet Kumar, IPS, SP Champai, Mizoram. Recognized for his focus in the multi-layer checking using both technology and physical checking within the districts with the help of various security and confidence building measures. And we now have the special awards और चुनाव प्रबंधन एवं नवोन्मेषी उपायों के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है श्री विकास कुमार को, IPS नोडल ऑफिसर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर राजस्थान। विभिन्न टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग एनालिसिस प्लानिंग टूल्स एवं नई पहलों के माध्यम से आपने राजस्थान के विधानसभा चुनावों के दौरान धन बल के दुरुपयोग के खतरे को रोकने में प्रभावी प्रगति हासिल की। We now have the special award for the election management being awarded to Shri Sarfaraz Ahmed, IAS Joint Chief Electoral Officer, Telangana. Recognized for taking initiatives towards the enrollment and the purification of electoral roll and the printing and distribution of 45.72 lakh epics on ward footing basis. और अब मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है श्री रोहन सक्सेना को, CEO जिला पंचायत निवाड़ी मध्य प्रदेश। आपके द्वारा 100 दिनों की स्वीप कार्यक्रम रणनीति तैयार की गई। इन प्रयासों के कारण जिले में 2018 विधानसभा चुनावों की तुलना में 2023 चुनावों में 5.10% VTR में वृद्धि हुई। और अब IT पहल के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है श्री सैयद नसीर जमील जी को, सिस्टम एनालिस्ट झारखंड। आपको #Proud of my BLO और #Senior Voters Voice अभियानों को शुरू करने के लिए सम्मानित किया जाता है, जिनके परिणाम स्वरूप राज्य भर में भारी जागरूकता पैदा हुई। Now the award to the Government Department Agency for Election Management Expenditure awarded to Srimati C. Shikha, IAS Commissioner of Commercial Taxes, Karnataka, awarded for implementing innovative strategies to ensure the free and fair conduct of general elections to the Karnataka Legislative Assembly and creating an e-arm cell. और देवी सज्जनों, अब चुनाव प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य को पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ राज्य है छत्तीसगढ़। और पुरस्कार ग्रहण करने के लिए हमारे साथ मंच पर सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, IAS मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़। आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नववधु सम्मान, चुनावी तिहार 2023 और शक्ति नामक एवं स्वीप कार्यक्रमों के माध्यम से EP रेशियो, जेंडर रेशियो रोल्स, 18 से 19 वर्ष के मतदाता और जनजातीय समूह के पंजीकरण में वृद्धि देखी गई। और अब मीडिया पुरस्कार। यह मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए मीडिया पुरस्कार है और इस श्रेणी में सबसे पहले ECI प्रिंट मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है अखबार पत्रिका समूह को। पत्रिका समूह को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान मतदाता जागरूकता पैदा करने के लिए और चुनाव के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले अपने जागो जनमत अभियान के लिए सम्मानित किया जाता है। और अब ECI इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है रेडियो मिर्ची बेंगलुरु को। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान जागरूकता पैदा करने और लोगों से बाहर निकलने और मतदान करने का आग्रह करने के लिए ई-सला वोट नमदे अभियान के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। और आखिरी पुरस्कार ECI इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है न्यूज स्टेट MPCG न्यूज नेशन नेटवर्क को। वोट गुरु अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए चुनावों और मतदान अधिकारों पर जानकारीपूर्ण कवरेज प्रदान करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। सभी माननीय राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 के लिए चुनाव संबंधी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए पुरस्कार प्रदान किए अलग अलग क्षेत्रों में। हमारे महान राष्ट्र के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदरणीय श्री राजीव कुमार जी को मैं आमंत्रित करती हूं इस सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। And now an address by the Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar. माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मेरे साथी द्वय निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद पांडे जी एवं श्री अरुण गोयल जी, प्राउड विनर्स ऑफ द नेशनल वोटर्स डे अवार्ड टुडे, all heads and representatives of the national election management bodies from different countries sitting on the right, ex-CECs who have given us this proud heritage which we are carrying forward, respected representatives of the political parties,
फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया एंड बहुत बड़ी संख्या में आज इस मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जुड़े हुए श्रोतागण, फ्रेंड्स, मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सर्वप्रथम भारत निर्वाचन आयोग और देश के मतदाताओं की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। विश्व के विशालतम लोकतंत्र के 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अपने मध्य आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति से देश के सभी मतदाता गौरवान्वित और आनंदित हैं। और फ्रेंड्स, ये जो नेशनल वोटर्स डे हम मना रहे हैं, ये 14th जब शुरू हुआ था तो डॉक्टर कुरैशी उस समय सीईसी थे, वो भी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। The Election Commission of India was established on 25th of January 1950. That is a day before the India became a republic, and that is why we celebrate this National Voters' Day. So that way, this is the first institution which came in the independence India into being. Today, this day is an occasion to celebrate voters and youngsters in particular as central to the theme of the democracy. लगभग 96 करोड़ मतदाताओं का भारत निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास है और यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। This is the trust that we maintain and this is the trust which we have got in inheritance from our seniors. और हम इस जिम्मेदारी से पूरी तरह से सजग हैं कि इस विश्वास को बनाए रखना ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। हम इस विश्वास में कहीं भी कोई कमी नहीं कर सकते। Keeping this in mind, the Election Commission assures all its voters, all its stakeholders, all political parties that we are committed to providing a very pleasant experience in the voting in the year 2024 and onwards, and also a level playing field while the voting takes place and during campaigning. इसका उदाहरण वर्ष 2023 में हुए 9 राज्यों के चुनावों में जो मतदाताओं ने अपना विश्वास हमारे ऊपर दिखाया और अभिव्यक्त हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ ये मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहता हूं। There was an overall increase in percentages on these 9 states where the elections have been conducted during the year 2023. There were total around 245,000 booths and we had repolling only on 6 booths. There were many states where there was no repolling. Most importantly, there was no violence in any of the areas. त्रिपुरा में जब मतदान खत्म हुआ तो नेक्स्ट डे की हेडलाइंस थी, पीपल वोटेड आउट वायलेंस। Further, in testimony of our abiding belief and in the recently held elections in Chhattisgarh, in LWE areas of Chhattisgarh, large number of citizens got registered in the electoral roll for the first time and they exercised their franchise for the first time. छत्तीसगढ़ में 72% से भी अधिक वोटिंग LWE एरियाज में हुई, जो कि एक प्रतिबद्धता दिखाती है कि कैसे बुलेट से बैलेट की तरफ हम बहुत निरंतर तरीके से मूव कर रहे हैं। 121 मतदान केंद्र ऐसे भी थे जहां पहली बार इंडिपेंडेंस इंडिया में पोलिंग स्टेशन सेटअप किए गए और इस बार हमने पोलिंग स्टेशंस को वहीं रहने दिया, शिफ्ट भी नहीं किया और लोगों ने वोट किया। ये हमारे लिए बहुत ही संतुष्टि की विषय है। और इसी कड़ी में हम ये भी कटिबद्ध हैं कि चुनावों में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कुछ राज्यों में हिंसा बची है, उसको भी खत्म करने के लिए हम कमीशन की तरफ से कटिबद्ध हैं। प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए भी बड़ी भारी मात्रा में राशि का सीजर किया गया, which has reached to the tune of above 3,000 crores in the 9 elections, which is a record all-time high. I compliment the team of officers in the commission and the states who worked tirelessly to achieve this level of credibility and confidence in our process, and that is what we are in the business of maintaining that trust. जहां वर्ष 2023 में 9 राज्यों में चुनाव हुए, वहीं वर्ष 2024 निर्वाचन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। All over the world, there are more than 60 countries which are going to elections in this year.
and they will elect their respective governments. भारत निर्वाचन आयोग का ये प्रयास भी है और कमिटमेंट भी है कि भारत निर्वाचन का दृष्टांत विश्व भर में उल्लेखनीय हो और भारत की निर्वाचन पद्धति की छवि पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड्स के रूप में कायम हो. We are absolutely committed to set the golden standards in the conduct of elections. It is our duty and resolve to give India's over 96 crore electors and all these stakeholders the best possible electoral experience, truly befitting to the largest democracy of the world. और इस largest democracy का magnitude, very briefly if I mention, there are 960 million voters who cast their vote at more than 10 lakh polling stations, and elections conducted by more than 1.5 crore, 15 million election managers. It's not a small work. And everywhere across the country, it happens with the precision as a clock runs. At exact time it starts, at exact time it ends. And that's the marvel in which we want to further excel. And there is no other example world over of the logistic movements of man and material of this magnitude in any peacetime exercise. Or yes, if this was only the quantitative part, the qualitative part is that in our electoral rolls, we have 18 to 19 years, we have more than 1.73 youth who represent the country in the elections. And we also have 81 lakh persons with disability. So our electoral roll is totally inclusive. We also have third gender. We also have 80 plus voters who are close to quarter to 2 crores, of which more than 100 crores are also more than 2 lakh. And this year, कमीशन ने एक और अपने ऊपर बीड़ा उठाया था कि जो भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको सबको 100% मतदाता सूची में शामिल किया जाए और प्रयास किया जाए स्पेशल कि उनको मतदान के दिन लाया जाए और ये हम मतदाता सूची में 100% उनका रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम हो सकें. आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के कर कमलों से एक डाक टिकट का भी अभी विमोचन होगा. इसके बाद आफ्टर द वोटर्स आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज who are the after voters the second biggest stakeholder of ours. The commission bases its engagement with political parties broadly based on 3 pillars. One is the disclosure. Whatever we do, we disclose to the political parties at every stage. Whatever we do, we also, the second thing is involvement, disclosure, involvement, and responsiveness. Whatever we do, we involve political parties at every stage, starting from the preparation of electoral rolls to the voting, to the EMV machines. At every stage counting, political parties are present. And we also, the third pillar is that we respond whenever there is a letter or an issue raised by the political parties. मैं सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग और भारतीय चुनावी प्रक्रिया में उनके समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं. At this stage, political parties, being the biggest stakeholder, must become the best partners in ensuring the ethical journey. हमें ध्यान रखना है कि राजनीतिक परिदृश्य उन्नत रहे और कैंपेनिंग के दौरान पॉलिटिकल डिस्कोर्स के स्तर को ऊंचा बना के रखा जा सके. Commission has issued and given advisory also to arrest the plummeting level of the political discourse. हमारा प्रयास रहेगा 2024 में कि चुनाव शांतिपूर्ण के साथ साथ कम शोर शराबे के साथ हो, क्लटर भी कम हो, सबको समान अवसर मिले. That's what is our job, to provide a level playing field. In today's world, social media plays a very critical role, however, both positive and negative. Any attempt to compromise the fundamental tenets of faith and trust of people in the electoral process through false narratives will be met with swift, strong and robust measures to uphold the integrity of the elections. माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं. विधि विभाग का बहुत ही सक्रिय समर्थन
चुनाव आयोग को हमेशा मिलता रहा है और आपके कार्यकाल में विशेष रूप से बहुत ही रिस्पॉन्सिवनेस से हमारे जितने प्रस्ताव हैं उनको समर्थन मिलता रहा है। इसके लिए धन्यवाद। इस 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का संदेश वाक्य वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, जो मतदान के अनूठे और अद्भुत एहसास को अभिव्यक्त करता है। At this occasion, I urge all the voters that they must enjoy this feeling by exercising their franchise. माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के इंतजामों के बारे में जानकारी दे रहे थे। और देवी सज्जनों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्र सेवा में अपने 75वें वर्ष को चिन्हित करते हुए और इसके साथ साथ 2024 के संसदीय चुनावों के आलोक में आज समावेशी चुनाव थीम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी कर रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि आप स्मारक डाक टिकट का विमोचन करें। देवी सज्जनों, आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ सभागार में भारतीय डाक विभाग के माननीय सचिव श्री विनीत पांडे जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका धन्यवाद। And the Honorable President of India is releasing a commemorative stamp on the 75 years of the Election Commission of India, and it's worth ₹5. And this special commemorative stamp has been released on the occasion of the 14th National Voters' Day by the Honorable President of India. And this is indeed a landmark occasion. As the Chief Election Commissioner said, that the Election Commission of India was the first institution that was set up before the nation became a republic, and now addressed by the Minister for Law and Justice Independent Charge, Shri Arjun Ram Meghwal. National Voters' Day पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे भारत के राष्ट्रपति और हम सबको ऊर्जा देने वाले आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर उपस्थित मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद्र पांडे जी, इलेक्शन कमिश्नर श्री अरुण गोयल जी, सम्मानित मंच और इस सभागार में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के उपस्थित नेतागण, फॉर्मर सीसी, देवियों और सज्जनों और पत्रकार साथियों, अभी जैसे लगातार हम सुन रहे हैं कि ये 14th नेशनल वोटर डे है। चुनाव आयोग ने एक लंबी यात्रा के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव कराने का जो एक प्रोग्राम हाथ में लिया था 52 से, इस मंच के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग की भूमिका बहुत सराहनीय रही है और हम चुनाव आयोग की इस विषय पर बहुत भूरी प्रशंसा करते हैं कि आपने इस ड्यूटी को मजबूती से निभाया। संविधान के आर्टिकल 324, 325, 326, उसमें 326 में अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं। मैं थोड़ा अगर इतिहास में जाऊं तो सबसे पहले 27 जनवरी 1919 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक साउथ बोरो कमेटी आई थी, उसके सामने मताधिकार की बात उठाई और वयस्क मताधिकार की बात उठाई। ये बहुत बड़ा कदम था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन के सामने भी बाबा साहब उपस्थित हुए और भारत के हर 21 साल के वयस्क नागरिक, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि आप देखिए बाबा साहब बी आर अम्बेडकर 1928 में कह रहे हैं
कि स्त्री हो चाहे पुरुष, क्योंकि यहां चर्चा थी कि अभी महिलाओं को मताधिकार की बात नहीं करें। ब्रिटेन में भी लेट मिला, यूएस में भी लेट मिला, तब से ये बात कर रहे हैं। उसके बाद वो गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, वहां भी वो वरिष्ठ मताधिकार की बात करते हैं। और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होती है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के समय एक ऐसा स्थिति बनती है कि कुछ लोग अनपढ़ हैं इस देश में, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ वोट देना जानते नहीं हैं, तो ऐसा करें एक आदमी वोट दें और 10,000 वोट गिन लिए जाएं, जिसको सर की उपाधि है, कोई बड़ा सेठ है, कोई ग्रेजुएट है, कोई प्रसिद्ध वकील है। इस दिशा में जब बहस जारी थी, तब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम कुछ पैरामीटर तय करें। हमारे बाद बहुत से देश आजाद होने की कतार में हैं, बहुत से अफ्रीकन और एशियन कंट्री आजाद होंगे। भारत कोई अगर दिशा दिशा सकता है मताधिकार के बारे में, तो मेरा ऐसा मानना है, ये बाबा साहब कह रहे हैं, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू के सिद्धांत को अपनाया जाए। उसके बाद सभी को वैश्विक मताधिकार मिला। अगर इसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो मैं मानता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है, जिसके कारण सबको मताधिकार का प्रयोग मिला। इसके बाद हमारे यहां बहुत चुनाव आयोग में चुनाव सुधार को लेकर के बहुत सी चीजें हुई। मैं संसदीय कार्य मंत्रालय में भी काम करता हूं, तो एक बार पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, तो मैंने कुछ कमेटियों के नाम लिखे। इतनी कमेटियां बनी, तारकुंडे समिति, डॉक्टर एस.एल. सकदर समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वोरा कमेटी, वेंकटचलय समिति, जे.एस. वर्मा कमेटी, ये जितनी भी समितियां बनी और कमीशन बने, उन्होंने भी चुनाव सुधार की प्रक्रिया के बारे में हमें सजग किया। और मैं भारतीय संसद का भी आभार प्रकट करता हूं कि भारतीय संसद ने भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, समय समय पर इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में आवाज उठाई हमारे सांसदों ने। ये भी एक बड़ा विषय है कि हम सांसद भी, सब सरकार भी चाहते हैं कि चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। 2014 में चुनाव आयोग ने पहली बार 3rd जेंडर को कैटेगराइज करके राइट टू वोट का अधिकार दिया। यह भी एक बहुत बड़ा कदम था। अभी अभी हमारे राजीव कुमार जी बता रहे थे, हमने भी चुनाव में देखा कि 80 वर्ष के ऊपर के मतदाता और जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की। वो घर पे हैं तो भी वो चिंता नहीं करें, वोट आपको देने का आपका अधिकार है, तो आपको घर बैठे ही वोट देने की व्यवस्था चुनाव आयोग ने की। मैं 61st जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक आया था, उसकी भी यहां चर्चा करना चाहूंगा। वो भी एक माइलस्टोन था। पहले 21 वर्ष के नागरिकों को मताधिकार का अधिकार था, लेकिन 1988 में 61st अमेंडमेंट के द्वारा जो मत देने की जो आयु है, मताधिकार की जो आयु है, वो 21 से 18 की गई। और एक बहुत बड़ा कदम चुनाव आयोग ने बीच में उठाया, वो था ईपिक, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। और अभी 2-3 विषयों पे चर्चा भी चल ही रही है कि सिंगल वोटर लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं राजीव कुमार जी आपको बताना चाहता हूं कि ये बड़ा विषय रहता है। जब हम चुनाव में जाते हैं तो बोला हमारा नाम कट गया, हमारा नाम जुड़ने में दिक्कत आई, तो आपने ऑनलाइन भी प्रक्रिया की है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 ये भरने का, और इसमें भी सरलीकरण किया है। लेकिन अगर सिंगल वोटर लिस्ट की तरफ अगर हम आगे बढ़ जाएं तो इस दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। मैं इस अवसर पर सभी जो मतदाता हैं, वो नेशनल वोटर डे पे सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जब मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो लोकतंत्र
मजबूत होता है। और जितने भी जिनको अवार्ड मिला उनको भी बधाई देना चाहता हूं, चाहे वो जिला निर्वाचन अधिकारी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हों, चाहे पुलिस बल से जुड़े हुए लोग हों, चाहे हमारे गांव के लोग जो उस दिन वोट करने की प्रक्रिया होती है टेबल पे जो बैठते हैं। और मैं तो इस मंच से उनको भी बधाई दूंगा जो पोलिंग पार्टी है, कैसे दूर स्थानों में पोलिंग पार्टी जाकर के और चुनाव कराने का साहस दिखाती है। कई बार तो उनको कई विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया और सरकार का पक्ष रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और राष्ट्रपति महोदय जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए अपना जो आमंत्रण था वो स्वीकारा और आप आकर के जो हमें मार्गदर्शन देंगे उनको भी सरकार भी ध्यान में लाएगी और इलेक्शन कमीशन भी मुझे लगता है ध्यान में लाएंगे। मैं पुनः जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। That was Shri Arjun Ram Meghwal, the Minister of State, Independent Charge for Law and Justice, and he spoke about the circumstances under which even the polling parties work, and he commended the role of every stakeholder in the electoral process of the country. We are bringing to you live the 14th National Voters' Day celebrations from the Manekshaw Center at Delhi Cantonment in New Delhi. And now it is going to be the launch of the campaign for the general elections for the Lok Sabha 2024. तो चुनाव का पर्व, देश का गर्व. Truly, the elections are the biggest festival and the pride of our nation. देवी सज्जनों, ये अभियान विविध मीडिया चैनल्स जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया और सामुदायिक पहुंच के माध्यम से गर्व की भावना पैदा करते हुए सभी एलिजिबल वोटर्स को अपना कीमती वोट डालने के लिए प्रेरित करता है. And further, ladies and gentlemen, the Election Commission of India has also produced a short film. It's instilling a sense of responsibility and a duty among every voter to vote. इस फिल्म का निर्देशन जाने माने फिल्म निर्देशक श्री राजकुमार हिरानी जी ने किया है. उन्हें किसी कारणवश इस सभागार में वो नहीं आ पाए हमारे साथ, पर उनको बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई. पर हमारे साथ फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर श्री संजीव किशन चंदानी जी हैं. उनका एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं. और आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ सभागार में हमारे नेशनल आइकॉन भी हैं श्री राजकुमार राव जी. इसके साथ साथ हमारे स्टेट आइकॉन बिहार से मिस मैथिली ठाकुर, प्लेबैक सिंगर, और स्टेट आइकॉन राजस्थान से मिस दिव्या कृति सिंह, इक्वेस्ट्रियन. उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद. देवी सज्जनों, आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म जो आप अभी देखेंगे इसमें काफ़ी सारे लोकप्रिय प्रसिद्ध कलाकार हैं और उनके माध्यम से उन्होंने अपने छोटे छोटे संदेशों के माध्यम से संदेश दिया है सभी को कि आप अपना कीमती वोट ज़रूर डालें. तो आइए देखते हैं ये फिल्म. सबसे जरूरी काम मतदान. देश को सपोर्ट करते हैं इसलिए वोट करते हैं. बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए. इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन. सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की. वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए. कौन सी डेट, कौन सा वोट, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे. तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए. ये सिर्फ निशान नहीं, शान है. लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है. मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी. और इंग्लिश में भी ये वीडियो है, आइए अब उसे देखते हैं. Let's support the country. Let's vote for the country. Preparations are in full swing to welcome all of you. Voting day is not a holiday. It's a day of duty. Social media, fun and games all come later. First duty, voting. Check your name in the voter list. Log on to the voter service portal. We will check everything. Election date, voting booth,
candidate details. Only then we will cast our vote. Go fulfill your duty. This is not just a simple mark, but also a mark of respect. We have done our bit for the democracy. So, come out and vote. My vote, my duty. My vote, my duty. सो माई वोट माई ड्यूटी, अपने फर्ज को निभाएं और वोट जरूर करें। और अब दिव्य सजनों, मैं सभी की तरफ से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि, हमारी यशस्वी राष्ट्रपति जी, भारत की प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से आप अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। And now the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu, will address the 14th National Voters' Day. राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण चंद्र पांडे जी तथा श्री अरुण गोयल जी, निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। आज भारत के निर्वाचन आयोग के 75वें स्थापना दिवस तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। चुनाव प्रक्रिया में सराहनीय योगदान देने के लिए चुने गए सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज के दिन लोकतंत्र का ये उत्सव राज्य और जिला स्तर पर तथा देश के अनेक मतदाता केंद्रों पर एक साथ मनाया जा रहा है। प्रशासन और जनता की बड़ी पैमाने पर इस उत्सव में भागीदारी की व्यवस्था करने के लिए मैं निर्वाचन आयोग को साधुवाद देती हूँ। दुनिया के सबसे विशाल और जीवंत लोकतंत्र की विश्व पटल पर प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मैं देश के सभी मतदाताओं को बधाई देती हूँ। हमारे लोकतंत्र की विशालता और विविधता हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब तक निर्वाचन आयोग द्वारा 17 आम चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। इस वर्ष निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2024 के आम चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आज देश में 96 करोड़ से अधिक मतदाता है तथा आम चुनाव में लगभग 12 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष आम चुनाव को संपन्न कराने में लगभग 1.5 करोड़ चुनाव कर्मी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। भारत के आम चुनाव कराने में लोकतंत्र से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक एक्सरसाइज की जाती है। मुझे बताया गया है कि आगामी आम चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो तथा मतदान प्रक्रिया सुविधाजनक हो, ऐसे उद्देश्यों के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा एक टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार किया गया है। अनेक जटिलताओं और चुनौतियों के बाद हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के तहत कार्यरत टीम को प्रत्येक सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निष्पक्ष और समावेशी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मैं निर्वाचन आयोग की वर्तमान और पूर्ववर्ती टीमों की भरपूर सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि विदेश में रहने वाले मतदाताओं, फौज में अपने तैनाती के स्थान पर मौजूद सेनानियां और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए मतदान कराना सुगम बनाने के दिशा में निर्वाचन आयोग निरंतर प्रयासरत है। मतदाता सूची को अपडेट करने तथा उसमें संशोधन करने, मतदाताओं को जागरूकता बढ़ाने और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने आदि सभी पहलुओं पर निर्वाचन आयोग पूरा ध्यान दे रही है।
कोई भी मतदाता छूटने ना जाए, इसके लिए निर्वाचन आयोग सदैव प्रयासरत रहता है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जारी की गई टैगलाइन चुनाव का पर्व देश का गर्व अत्यंत सारगर्भित और प्रेरक है। ऐसे समग्र प्रयासों के लिए मैं निर्वाचन आयोग की सराहना करती हूँ। जितने बड़े पैमाने पर और जिस सफलता के साथ हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, वो विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए एक मिसाल है। मुझे विश्वास है कि निर्वाचन आयोग द्वारा टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी गतिविधियों में यथासंभव और अधिक बढ़ाया जाएगा। देश के सभी हिस्सों में रहने वाले मतदाता सुविधा के साथ मतदान कर पाए, इसकी व्यवस्था कर पाना आसान नहीं है। हर प्रकार की चुनौतियों के बावजूद निर्वाचन आयोग की टीम इस कठिन काम को अंजाम देती है। इससे हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। निर्वाचन आयोग ने विभिन्न स्तरों पर प्रशासन और संस्थानों का सहयोग सुनिश्चित करके महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, सुदूर क्षेत्रों में बसे जनजातीय समुदाय के लोगों और समाज के वंचित वर्गों द्वारा मतदान को प्रोत्साहित किया गया है। जो लोग मतदान केंद्रों तक नहीं जा सकते, उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा घर में ही मतदान की सुविधा प्रदान करना सराहनीय है। इन प्रयासों से हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया और अधिक समावेशी हुई है। सभी मतदाताओं के समावेश के मूल में जो सोच है, उसे आज यहाँ दिखाई गई फिल्म में बहुत प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। शॉर्ट फिल्म जैसे रोचक माध्यम के जरिए ईच वोट मैटर्स तथा एवरी वोट काउंट्स का संदेश प्रसारित करने के लिए मैं निर्वाचन आयोग की सराहना करती हूँ। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा अनेक राज्यों में चुनाव संपन्न कराया गया है। चुनाव प्रक्रिया में नैतिक आचार का संरक्षण करने के प्रयासों से लेकर स्पेशल पोलिंग बूथ की स्थापना तक अनेक उल्लेखनीय कार्य आयोग द्वारा किया गया है। मैं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब तक का अधिकतम मतदान कराने में सफलता के लिए निर्वाचन आयोग की टीम को विशेष बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि निर्वाचन आयोग द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पाठ्यक्रमों में इलेक्टोरल लिटरेसी को शामिल करना विद्यार्थियों को नागरिकता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य के प्रति सजग बनाने में सफल सिद्ध होगा। हमारे युवा हमारे लोकतंत्र के भविष्य के कर्णधार है। आज यहाँ उपस्थित युवा मतदाताओं ने इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करके देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचक और निर्णायक भागीदार होने का अधिकार प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आप सभी युवाओं को बहुत बधाई देती हूँ। इस अधिकार को प्राप्त करने के साथ आप सभी युवाओं के कर्तव्य भी बढ़ गए हैं। देश के आप जैसे सभी युवा मतदाता हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। हर प्रकार के भेदभाव और संकीर्णता से ऊपर उठकर निर्भय होकर नैतिकता के साथ सभी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी आपने शपथ ली है। यहाँ उपस्थित युवा मतदाता देश के उन करोड़ों युवाओं के प्रतिनिधि है जो वर्ष 2047 के स्वर्णिम भारत के निर्माण में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इस राष्ट्र निर्माता युवा शक्ति को जागरूक बनाने के प्रयासों के लिए मैं निर्वाचन आयोग को एक बार फिर सराहना करती हूँ।
हमारे महान लोकतंत्र की सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सफलता की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। आपका संदेश हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति जिम्मेवारी निभाने के लिए प्रेरित करता है। दिव्य सज्जनों, आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होने के लिए राष्ट्रगान के लिए। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली से प्रस्थान करते हुए। And the 14th National Voters' Day was celebrated just a short while ago at the Manekshaw Center at Delhi Cantt, New Delhi, and it was graced by the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu, who was the chief guest, and Shri Arjun Ram Meghwal was the guest of honor. Today's National Voters' Day theme was Nothing Like Voting, I Vote for Sure. The Honorable President also presented various awards for best electoral practices for the year 2023. मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली कैंट दिल्ली में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह मनाया गया। इस विशेष प्रसारण से सिर्फ इतना ही। मैं शहसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी विवेक तोमर के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3